Hello students, today we are going to learn about polynomials, which is unit 3rd of RBSc class 10th mathematics, and we will discuss the various concepts of polynomials. And apart from polynomials, this chapter also includes quadratic equation. So let's see what is there in this chapter. So students, in previous class we have studied polynomials in one variable and their degrees. We know that in polynomial fx, the highest power of x is called the degree of polynomial. So what is fx? Is basically function of x, and which is called the polynomial. So polynomial is recognized as linear, quadratic or cubic polynomial. Generally, for variable x, fx is equal to ax plus b as linear, fx is equal to ax square plus bx plus c as quadratic, and fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is taken as cubic polynomial, where a, b, c, d are real numbers and a should not be equal to 0. So in this way, for variable x, the polynomial of n degree can be defined as an x ki power n plus an minus 1 x ki power n minus 1 and up to a1x plus a0, where n is a natural number and an minus 1, a1, a0 are called coefficient of these terms. So in this chapter, we are going to study the zeros, coefficient and division algorithm of polynomials, and also about the nature of roots and solutions of quadratic equation. In previous classes, we have studied HCF and LCM of real numbers. Here we will find HCF and LCM of algebraic expressions. So starting with zeros of a polynomial. Now consider a polynomial f1x is equal to 4x plus 2, f2x is equal to 2x square plus 3x minus 2 by 5, f3x is equal to 2 minus x cube. Now these are examples of linear, quadratic and cubic polynomials. Now by putting x is equal to 2, so when we put 2 in place of x, what we are going to get? f1 is equal to 4 into 2 plus 2 is equal to 10, f2 is equal to 68 upon 5, f3 is equal to minus 6. So by putting different values of x, we get different values of polynomials. So if fx is a polynomial in variable x by a and fx is called the value fx at x is equal to a and is denoted by fa. So now consider a polynomial fx is equal to 2x square minus 8x plus 6. Now by putting x is equal to 1 and x is equal to 3 in the polynomial, we get f1 is equal to 0 and also f3 also equals to 0. So f1 and f3 are 0. Therefore 1 and 3 are called zeros of the quadratic polynomial. अगर किसी फंक्शन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x की जगह कोई भी वैल्यू हम डालते हैं और उससे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं zeros of the polynomial. जैसा कि आप देख रहे हो 2x square minus 8x plus 6 में अगर हम x की वैल्यू 3 या 1 डालते हैं तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है 0 हो जाती है. तो 1 और 3 के डालने पे जब ये 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि 1 and 3 are called the zeros of the polynomial. So in general terms हम कहेंगे कि a is said to be a zero of polynomial. a जो है fx का zero of polynomial है अगर fa is equal to 0, यानी x की जगह अगर हम a डालें और 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि a is the zero of the polynomial. अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं fx is equal to ax plus b और अल्फा जो है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो a अल्फा f अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की जगह हम अल्फा लिखेंगे a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0
और इस केस में हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू जो है -b/a, यानी माइनस जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म यानी जो बिना वेरिएबल के है, बिना x के है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी -b माइनस द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. नाउ x का कोफिशिएंट क्या है? a. Now we are going to do the second topic, relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Now as you know, quadratic polynomial is factorized by splitting the middle term in such a way that the product of both terms is equal to the product of first and third term. So this you have studied in the factorization of polynomials in your previous class. So here we should know the quadratic polynomials. Now here we are talking about quadratic polynomial which has two zeros, and we can understand the relationship between zeros and the coefficient. So let's see ax square plus bx plus c को देखते हैं हम. एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इसमें हम मानते हैं कि अल्फा और बीटा जो है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब x माइनस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x माइनस द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर्स ऑफ fx. यानी अगर अल्फा और बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है. कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल ये x माइनस अल्फा से डिविजिबल होगा और ये पॉलिनोमियल x माइनस बीटा से डिविजिबल होगा. तो इसका मतलब है fx जो है वो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का फैक्टर है, यानी fx इज इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. अब हमें k जो है एक कांस्टेंट हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि x माइनस अल्फा भी फैक्टर है, x माइनस बीटा भी फैक्टर है. मान लीजिए अगर हम fx की जगह अगर कोई भी नंबर लेते हैं, इफ यू टेक एनी नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 24 के दो फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3. तो इसका मतलब 24 जो है वो k टाइम्स 2 इंटू 3 होता है. तो इसका मतलब 24 इज इक्वल टू k टाइम्स 2 इंटू 3. तो यहाँ k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k विल बी 4. जैसा कि अगर fx का फैक्टर जो है वो x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है, तो हम fx को कैसे लिख सकते हैं? एंड fx इज इक्वल टू x k टाइम्स fx इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. तो आपको समझ में आ गया कि हाउ वी कैन राइट fx इज इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. नाउ so we have ax square plus bx plus c is equal to k times, now we simplify it, so we get ax square plus bx plus c is equal to kx square, and this way we get alpha plus beta. Now comparing left hand side and the right hand side, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? k, यानी k इज इक्वल टू a, और x का कोफिशिएंट क्या है? k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. सो b इज इक्वल टू व्हाट? Now k is equal to a, so b is equal to what? b is equal to alpha plus beta into k. Now k is, k की वैल्यू क्या हो जाती है? a हो जाती है. अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है यहाँ पे?
alpha into beta is k times alpha into beta becomes c. So alpha beta is equal to c upon k. So c upon k is equal to c upon a because k is equal to a. तो जैसा आप देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है कि a के जो है वो k की वैल्यू क्या हो जाती है a के बराबर और k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा is equal to b. So alpha plus beta is equal to b upon k. Now k is equal to a, तो हम इसे लिखेंगे b upon so this becomes b upon a. तो ये तो आपका हो गया एक इक्वेशन। Now secondly we will see that alpha into beta, k times alpha into beta is equal to c. So alpha into beta is equal to c upon k. Now k is, the value of k is a. So this becomes alpha into beta is equal to c upon a. So I think it is clear now. Alpha plus beta is equal to b upon a and alpha into beta. Sorry, this becomes minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. So we can say sum of zeros is equal to minus b upon a and product of zeros is equal to c upon a. Alpha and beta are the zeros of the polynomial, quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Okay, now we will see an example. Find the zeros of quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Now in this case we see that fx is equal to x square minus 2x minus 8 is equal to x square minus, now what we do in factorization, minus 2 को हमें क्या करना है, दो टुकड़ों में बांटना है। कितना होना चाहिए, उन दो टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, -8। ठीक है, -8 क्या है, c है। ये आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो बीच का टर्म है, जो b है, उसे हमें दो पार्ट में बांटना है so that the product become -8. Now in this case it will be -4 and -2, -4 and +2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम देखते हैं, इन दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट जो है वो -8 आता है और इनका सम क्या होना चाहिए, -2। -4 और 2 को ऐड करेंगे तो -2 आता है। So we will write it as x square minus 4x plus 2x minus 8. So this becomes x square minus 4x plus 2x and we will take x as common. So here it will become x into x minus 4 plus 2 into x minus 4. So this becomes x plus 2 into x minus 4. अब taking fx is equal to 0, fx की वैल्यू 0 निकालेंगे तभी हम zeros of the polynomial निकाल पाएंगे। So we'll put it equal to 0. So in this way we will get x plus 2 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0. So x is equal to -2 and x is equal to 4. जब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब इसमें से कोई भी 0 हो सकता है, either x plus 2 is 0 और x minus 4 is 0, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब x plus 2 0 है या x minus 4 0 है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है x is equal to -2 और x is equal to 4। तो इसका मतलब zeros of the polynomial क्या हो गया, quadratic polynomial, -2 and 4।
अब हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है ना। सम ऑफ जीरोज जो है यानी -2 और 4 का सम क्या हो जाएगा 2, और फॉर्मूले से क्या होता है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1। तो सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया माइनस ऑफ -2 यानी +2 और a इज 1, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो क्या होना चाहिए c इंटू ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू द कांस्टेंट टर्म। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो कांस्टेंट टर्म -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ -c अपॉन, so this becomes c upon a. Product of zeros is c upon a, -8 upon 1. तो और वैसे अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है -2 इंटू 4 दैट बिकम्स -8, और फॉर्मूले से हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आना चाहिए माइनस इज इक्वल टू सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी c अपॉन a होना चाहिए। तो c की वैल्यू यहाँ पे है -8 और a की वैल्यू 1, तो ये -8 है। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी जो है वो बराबर आ रहा है, तो इससे ये वेरीफाई हो रहा है। एग्जाम्पल 2 के अंदर देखते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलिए हम इसे करके देखते हैं, लेट्स डू इट। तो एग्जाम्पल 2 है फाइंड द zeros of the polynomial 3x square plus 5x minus 2 and verify the relationship। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। So what we are going to do, सबसे पहले let fx is equal to 3x square plus 5x minus 2। अब हम यहां देखते हैं कि जो +5 है, इस +5 ये इसको हमें दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो टुकड़ों में बांटना है, सो दैट जो प्रोडक्ट है आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी, उन दो टुकड़ों का प्रोडक्ट जो है 3 इंटू -2 दैट इज -6 होना चाहिए, और सम क्या होना चाहिए, तो हमें दो सम होना चाहिए +5। तो हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम जो है +5 हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो हम देखते हैं 6 और -1, 6 और -1 ये दो नंबर हैं जिनको अगर हम जोड़ें तो +5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाएगा। तो हम +5x को लिखेंगे +6x minus x। So we have is equal to 3x square plus 6x minus x minus 2। Now 3x square plus 6x में क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x plus 2। अब -x -2 में कॉमन जो है वो आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा +2। So this becomes 3x minus 1 into x plus 2। Now zeros of the polynomial निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, fx is equal to 0 पुट करना होगा। तो fx is equal to 0 पुट करने पे क्या आता है, दिस इंप्लाइज
3x minus 1 into x plus 2 is equal to 0। अब आपको पता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 है। तो हम किसी भी एक को, तो या तो 3x minus 1 0 है या x plus 2 0 है। तो 3x minus 1 is equal to 0 करने पे क्या आता है, x is equal to 1/3 और x plus 2 is equal to 0 करने पे आता है x is equal to -2। तो इस पॉलिनोमियल का हमारे पास जो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आया है वो क्या आया है, 1/3 एंड -2। तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास 1/3 और -2। तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस जो है 1/3 -2, ये हो जाएगा आपका 1/3 -2 करने पे -5/3। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x यानी b माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। अब हम देखते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है। अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो जब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है तो उसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है +5 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3 है। तो हम यहां देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x है तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x है 5 और कोफिशिएंट ऑफ x है x स्क्वायर है 3 है। तो हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है। ये तो हमें डायरेक्ट जोड़ने पे आया और ये फॉर्मूले से आया, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इज इक्वल टू 1/3 इंटू -2। तो क्या आता है ये, इज इक्वल टू -2/3। और फॉर्मूले से क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ so is equal to constant term upon coefficient of x square is equal to constant term upon coefficient of x square। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 3 और -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 3। तो कांस्टेंट टर्म हो जाता है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाता है 3। सो दिस बिकम्स -2/3। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट करने पे और फॉर्मूले के हिसाब से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं, दिस एंड दिस आर सेम, हेंस वी कैन से इट इज
verified. Now let's see the example 3. Find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are 1 upon 4 and minus 1 respectively. अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1. तो इसका सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे? अगर अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा जो है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. अब हमें a, b और c की वैल्यूज निकालनी है. हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है सम ऑफ जीरोस इज माइनस b अपॉन a. तो इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने पास 1/4. उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा जो है वो क्या होता है c अपॉन a, और c अपॉन a क्या दिया हुआ है -1 क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हम मानते हैं कि a की वैल्यू k है. k कोई भी कांस्टेंट टर्म, k इज अ रियल नंबर, तो हम a की वैल्यू k मान लेते हैं. तो b की वैल्यू क्या हो जाती है -k/4 और c की वैल्यू हो जाती है इक्वेशन 2 में डालने पे -k. अब हमारे पास b a k है, b के -k/4 है, c -k है. अब इन तीनों की वैल्यू जो है हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में डालते हैं. सो दिस बिकम्स kx स्क्वायर माइनस k/4x माइनस k, और अब इसमें हम k अपॉन 4 जो है वो कॉमन लेते हैं, तो इट बिकम्स k/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. तो अब आपको पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट टाइम सम पॉलिनोमियल है. तो इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. इस एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है. The sum and the product of whose zeros are 1/4 and -1 respectively. यानी sum of zeros 1/4 है और product of zeros -1 है. तो देखिए कैसे करते हैं इसको. It will be slightly different from what is there in the book. तो हम इसको करते हैं let the quadratic equation be ax square plus bx plus c. Sorry. Let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c. अब हमारे पास दिया हुआ है sum of zeros is 1/4. Now हमें पता है what is sum of zeros. Sum of zeros जो है क्या होगा is equal to minus b upon a, और ये क्या दिया हुआ है हमारे पास 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है क्या होता है c अपॉन a, और ये दिया हुआ है हमारे पास -1. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट डू वी गेट? सो वी गेट b इज इक्वल टू -a/4, और सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलता है c इज इक्वल टू -a. अब यहां पे हम क्या करते हैं, a को लेट a इज इक्वल टू कोई भी नंबर है a, लेट a इज इक्वल टू k. k एक कांस्टेंट टर्म है, k कोई भी रियल नंबर है,
जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, a को k बनाने पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k अपॉन 4 और c विल बी इक्वल टू माइनस k। अब हम देखते हैं कि b की वैल्यू आ गई माइनस k अपॉन 4, a की वैल्यू आ गई k, c की वैल्यू आ गई माइनस k। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। So we have b is equal to minus k upon 4 and c is equal to minus k. So and a is equal to k. अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस पॉलिनोमियल जो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर हम a की जगह क्या लिखेंगे, k, kx स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है माइनस k अपॉन 4, माइनस k अपॉन 4 इंटू एक्स, और प्लस c की वैल्यू है माइनस k। तो ये हो जाता है kx स्क्वायर माइनस k अपॉन 4 इंटू एक्स और माइनस k। अब हम k अपॉन 4 को कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में, और या फिर आप 1 अपॉन 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस k अपॉन 4, सॉरी k अपॉन 4 हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स k अपॉन 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और माइनस k अपॉन 4 तो माइनस 1 आ जाएगा, और k अपॉन 4 k को k अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, so this becomes माइनस 4। अब हम देखते हैं कि k अपॉन 4 जो है कांस्टेंट टर्म है, और उसको अगर हम किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल क्या आ गया, 4x स्क्वायर minus x minus 4, and now this is the required polynomial. So with this we come to the end of first part of polynomial. Now there is exercise 3.1 जो आपको करना है, this you have to do, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient, जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल जो आप किया था उसके अंदर। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, इनका आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, पहले फैक्टराइज करना है, जीरो पुट करना है, और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरली दो वैल्यूज आती हैं, उन दोनों वैल्यूज को हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप कि सम ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है whose sum and product of the zeros are the following numbers respectively: minus 3 2 root 2 1 by 3 minus 1 by 4 1 by 4 and fourth one is 0 root 5. Fifth question is 4 1 and sixth is 1 1. Now third question is, if sum of the squares of zeros of quadratic polynomial, अगर sum of the squares of जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर जीरोज जो हैं इनके दो जो जीरोज हैं उसका स्क्वायर का सम दिया हुआ है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी, यानी जो इसमें कांस्टेंट टर्म है c उसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, एंड इन द coming days, in the coming video, we will tell you about the second part of polynomials. Thank you.